So hello, welcome to you all back to this session. So in the last few lectures we are discussing about cytokines, and this is my part 3 video where we'll be highlighting, last time I told you that we'll be discussing about the role of cytokines in adaptive and innate immune responses. So as per discussing about the different types of cytokines, I hope that you got an overall idea that how individual cytokines are responsible, what are their functions, how they behave overall in generating an immune response. So in contrast to that particular lecture, I thought that it is very important to understand individually that how cytokines have a specific role in innate as well as in adaptive immune response. This is my notes. From there I took the snapshot, and I thought like this is the better way of presenting in front of you. So starting with today's lecture, as per we know that innate immune response. So the innate immune system basically comprises of the basic types of immune cells, as we know, that is monocyte, macrophages, dendritic cells, natural killer cells. So generally this kind of cytokines have a very important role for the activation of this kind of immune cells like monocytes and macrophages. So once the cells will be activated, these cells only be activated if there is some kind of infection, or there may be chances if there is some kind of inflammatory responses are being generated within your body. So as these inflammatory responses or immune responses are generated, then automatically what will happen, the cytokines will be released by or secreted by the different immune cells as well as by the non-immune cells like endothelial, epithelial and fibroblast cells. So in contrast to that, we have also seen that the cells which are mainly responsible, I mean the cells means the cytokines who are basically responsible for generation of innate immune responses are basically the different types of interleukins, types of interferons as well as the tumor necrosis factor family. So interleukin 1, 6 and 12 are highly responsible for the generation of the innate immune response, and tumor necrosis family is the main trigger for any inflammatory responses. So in that contrast, we also have other cells, like if you can notice here that interleukins are mainly, you will see that different types of interleukins, they are responsible mainly for the activation of the innate immune cells. We will see that mostly you will see that function, on the basis of the function, mainly they will help in activation of natural killer cells and other cells. So therefore the primary function, as we can see, is that mainly the activation purpose. So let's come and see them individually. So as I have in a tabular manner, I have framed all these types of cytokines responsible for the innate immune responses in a one particular table. So first we will be starting with interleukin 1. So this is, you will be seeing that here I have mentioned who are the cells that are responsible for their synthesis, that means their formation, and what is their effect. Effect means the function in response to innate in contrast to the generation of innate responses. So in that context we will be discussing who are the cells going to synthesize them. तो पहला जो हम स्टार्ट करें इंटरल्यूकिन 1 से, तो ये आप इस तरीके से पढ़ सकते हो. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये जब हम इसको थियोरेटिकली पढ़ते हैं, जब मैंने भी खुद इस चीज़ को पढ़ा था, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर व्हिच आर द सेल्स रिस्पॉन्सिबल. सो इन दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट यू प्लीज हाईलाइट specifically common types which you can see the most common in almost all. So from the very context here, I am using a color pen, red color pen. Okay. See, monocytes, macrophages. I think here almost in most of the cases you will be able to see monocytes. Everywhere you are mostly observing monocytes, right? So the interleukin 1 basically synthesized by monocytes, macrophage,
एंडोथेलियल सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स। तो ये इंटरल्यूकिन 1 का जो प्राइमरी रोल होता है इन्फ्लेमेशन, आप बहुत इजीली याद कैसे रख सकते हो। देखिए इंटरल्यूकिन्स जो है ना, साइटोकाइंस मेनली आपकी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में ही जनरेट होते हैं। मतलब मैं इनेट की बात करती हूँ तो पहला एक तो कॉमन फंक्शन आपको हर चीज़ में दिखेगा, इन्फ्लेमेशन इज अ मस्ट। सेकेंड इज इन्फ्लेमेशन होगा तो बॉडी का टेम्परेचर या जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ ऑटोमेटिक देयर विल बी अ राइज इन द टेम्परेचर, सो फीवर इज एन अनदर symptom. And third is induction of the acute phase protein. Now coming to the context of acute phase protein, earlier we discussed about acute phase proteins. If you can remember that acute phase proteins are those like, suppose you have an infection and we have different soluble effector proteins, right? बहुत सारे सीरम प्रोटीन्स होते हैं, देयर आर मोर देन 30 सीरम प्रोटीन्स विच इंक्रीजेस इन द कंसेंट्रेशन व्हेन देयर इज एन इन्फेक्शन। अगर आपके शरीर पे कहीं पे भी चाहे पे चोट लगा या फिर किसी तरीके से आपको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन के टाइम पे भी आपके लेवल ऑफ एक्यूट फेस प्रोटीन्स बढ़ना शुरू हो जाता है। और एग्जाम्पल्स के तौर पे प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इन माई फर्स्ट आई थिंक पार्ट 1 सेक्शन आई डिस्कस्ड अबाउट I mentioned 3 names. I am telling you the abbreviations. Please let me know the full forms. That is CRP, one is SAA, and third was MBP. So if you can remember the full form of this particular the 3 acute phase proteins, please mention it in the comment box, please. Next type we will be discussing is interleukin 12. Interleukin 12 is again, it is synthesized by macrophage and certain dendritic cells also secrete them. सो वेरी इजी टू रिमेंबर। देखिए आप हर एक इंटरल्यूकिन्स में आपको दिख रहा है मैक्रोफाज एक कॉमन है एंड मोरल इज मोनोसाइड ही बाद में मैच्योर होके मैक्रोफाज में कन्वर्ट होता है। मोनोसाइड ब्लड में जब होता है इमैच्योर स्टेज में तो इसका मोनोसाइड बोलते हैं। जब ये टिश्यूज तक पहुंच जाता है या फिर जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है वहां तक पहुंचने के बाद इट बिकम्स अ मैक्रोफाज, लार्जर इन शेप। इट इज़ वेरी लॉन्ग लिव्ड एज वेल, राइट। Next thing is that what they do, it is mainly responsible for activation. So in short, inflammation ही कर रहा है, आपका सेल्स एक्टिवेट होगा फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे। तो बेसिकली नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। सेकेंड, साथ साथ ये इन्फ्लुएंसिंग द एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट और एडेप्टिव हम एक दूसरे लेक्चर बनाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा उस पर, कि इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी एक वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर पे बिहेव करते हैं। दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट तो नहीं है। दे आई शुड से नॉट इंटरडिपेंडेंट, इट्स अ रॉन्ग टर्म, इट इज़ इंडिपेंडेंटली दे बिहेव एंड बट इन अ वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर। दो अलग अलग तरीके से बिहेव तो करते हैं बट द coordination maintained between them is very interesting if you can understand. So ये जो आपका इंटरल्यूकिन 12 है ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही साथ इंटरल्यूकिन 6, इसमें कुछ आपका जैसे मैंने बोला कि साइटोकाइंस 2 जगह पे ही आपका रोल प्ले करता है। हमने बोला रेगुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज। इम्यून रिस्पॉन्सेज चाहे वो इनेट हो या एडेप्टिव हो, दोनों पे ही इक्वली वो रेगुलेशन में मदद करते हैं। सो इन दैट कंटेक्स्ट टी हेल्पर सेल्स आर गोइंग टू सिक्रेट दिस इंटरल्यूकिन्स एज वेल। So we also have monocytes, macrophages, endothelial cells, like more or less similar you can see। हर एक आपका साइटोकाइंस में जो सिक्रेटेड सेल्स मेनली आपका प्रेजेंट है, more or less मैक्रोफाज कॉमन होंगे, एंडोथेलियल सेल्स भी कॉमन होंगे। मोनोसाइट्स जस्ट रिमेंबर रखने की ज़रूरत है कि कौन टी सेल्स सिंथेसाइज कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है कि इंटरल्यूकिन 6 ही इंटरल्यूकिन के कैटेगरी पे सिर्फ इंटरल्यूकिन 6 को सिंथेसाइज कर रहे हैं। सेकेंडली इसका जो फंक्शंस भी सिमिलर है। इंडक्शन ऑफ एक्यूट फेस प्रोटीन्स, इन्फेक्शन होगा तो एक्यूट फेस प्रोटीन्स होने का भी बढ़ने का चांसेस भी कॉमन है। और इन्फ्लुएंसिंग द एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी यहाँ पे तो काम होगा ही, बिकॉज जब टी सेल्स का यहाँ पे रोल प्ले है तो एडेप्टिव इम्यूनिटी का भी रोल प्ले यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट हम ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली की बात कर रहे हैं। आपको अगर दिख रहा है द 4th कॉलम आई एम डिस्कसिंग। यहाँ पे आपका जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली है, मोनोसाइट, मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पे एक्सेप्शनल चीज़ जो है यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का एक पार्ट होता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली मेनली अगर आपको याद होगा जब मैंने अपने पार्ट 2 वीडियो पे पढ़ाया था ट्यूमर नेक्रोसिस के बारे में, तो स्पेशली हर एक सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए, स्पेशली फॉर सेल सर्वाइवल, सेल ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड मेनली दीज आर सिक्रेटेड बाय द एक्टिवेटेड टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। तो इसका जो मेन
नहीं फंक्शन होता है आप जस्ट बिकॉज न्यूट्रोफिल का सिंथेसिस हो रहा है, सॉरी आई मीन न्यूट्रोफिल ही सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो न्यूट्रोफिल का एक्टिवेशन, इन्फ्लेमेशन, इंडक्शन ऑफ एक्यूट फेस प्रोटीन, सिमिलर फंक्शंस और मोरल सिमिलर, सिर्फ एडिशन हो रहा है न्यूट्रोफिल का एक्टिवेशन करना। Last but not the least, we are almost at the end, that is called interferon alpha and beta. कुछ अलग नहीं है, दोनों का फंक्शन भी सिमिलर है, दोनों का सिंथेसिस भी सिमिलर है, इसलिए मैं अलग करके दो बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक ही टर्म में बताऊंगी। इसका जो सिंथेसिस होता है, जो सेल्स करता है, मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स, डिफरेंस एक ही होगा। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ही जनरली इंटरफेरॉन आपका सिंथेसाइज करते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे पिछले 2 साल में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो पैंडमिक सिचुएशन पे व्हाट वी हैव सीन इज दैट द लंग्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड एंड देयर इज अ पेशेंट्स के बॉडी और ब्लड सैंपल्स में मिला है कि देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ इंटरफेरॉन्स। देयर वाज अ कंडीशन व्हेन साइटोकाइन स्टॉर्म वाज आल्सो वेरी मच एविडेंट इन देयर ब्लड सैंपल। तो ये जो हो रहा है कि मतलब कि आपका बॉडी वो कैपेबिलिटी रख रहा है कि इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट पे वो काम कर पाए, उसको नष्ट कर पाए। सो बेसिकली वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ही मेनली आपका इंटरफेरॉन जेनरेट करता है। हमने पार्ट 2 वाले वीडियो में भी ये बताया गया था कि इंटरफेरॉन जब हमने पढ़ा था कि ये पहली बार डिस्क्राइब किया गया था 1957 पे, और दूसरी चीज़ हमने बताया था कि इसका जो रोल होता है ना, मेनली काम करता है एंटीवायरल डिफेंस पे, इम्यून एक्टिवेशन में और सेल ग्रोथ रेगुलेशन में। ये 3 उसका काम है। तो बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा, एंटीवायरल डिफेंस तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ही जनरली जेनरेट करते हैं। जब एक सेल पे वायरस इन्फेक्शन होगा तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी के इम्यून सेल्स जनरेट करने की वो क्षमता रखेंगे कि हम इसके अगेंस्ट पे काम कर पाए। तो बेसिकली इसका जो फंक्शंस होगा, अगेन इट विल बी वेरी सिमिलर, एक्टिवेटिंग द नेचुरल किलर सेल विच हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी and also increasing the class 1 MHC molecules. Now major histocompatibility complex will not be able to understand at this present moment. It is some kind of an APC. We'll discuss that in a later videos and we'll also discuss the different types of MHCs and how they behave. तो वो अभी इस context में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, but just remember that जो class 1 के MHC molecules होते हैं, interferon alpha and beta दोनों ये इसको increase करते हैं। So this is all about your innate immune response in which cytokines play a very important role. The second I will discuss about the adaptive immune response. So as we discuss about adaptive immune response, nothing much to remember. एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम एडेप्टिव इम्यूनिटी अलग तरीके से पढ़ेंगे, जैसे हमने इनेट के बारे में इतने वेल डिफाइंड डिस्कस किया है, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी का भी 2 आर्म्स होता है। मतलब उसके बेसिस पे आपका जब एडेप्टिव इम्यूनिटी समझेंगे तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे सब कुछ रिवॉल्व होगा। दैट इज़ योर बी सेल एंड टी सेल। इसका ही जो खेल है, इसके ये 2 सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल है आपके पूरे एडेप्टिव इम्यूनिटी के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, just a minute. That is your B. My handwriting gets horrible when I write here. Sorry. One is your B cell and another one is your T cell. B cell जो इस तरीके से इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, that is called as humoral immunity and T cell is called cellular mediated immunity. वो हम बाद में पढ़ेंगे, that is a different context, but just because इस पे जानना ज़रूरी है तो इसलिए हम बता रहे हैं। तो टी सेल्स जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, जो टी हेल्पर सेल्स है वो भी इंटरल्यूकिन जनरेट करते हैं। तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो टी सेल्स है, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी का आर्म्स बोला जाता है, टी सेल और बी सेल। टी सेल्स बेसिकली आपका हेल्पर फंक्शंस मतलब हेल्प करता है, काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। कैसे? ये कोई भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करते, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन सिर्फ बी सेल करते। तो मैंने इसीलिए कहा कि जब हम एडेप्टिव इम्यूनिटी को वेल डिफाइंड और बेसिक प्रिसाइज और कंसाइज वे से हम पढ़ेंगे तो दैट विल बी अ बेटर ईजी वे टू अंडरस्टैंड द एडेप्टिव इम्यूनिटी। बट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जितना ज़रूरी है जानना वो समझ लीजिए कि टी सेल का जो होता है कि वो एंटीबॉडी बिल्कुल जनरेट नहीं करते, बट टी सेल बी सेल को हेल्प करते हैं कि आप एंटीबॉडी किस तरीके से जनरेट कर दिया जाए या फिर कितने इजीली जनरेट कर दिया जाए। सो इन दैट पर्टिकुलर वे द टी सेल्स एग्जिबिट मोस्ट ऑफ द हेल्पर फंक्शंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जब भी इन्फेक्शन होंगे या जब भी किस तरीके से इमरजेंसी बॉडी में ट्रिगर होगा तो टी सेल्स इमीडिएटली साइटोकाइंस जनरेट कर देंगे।
साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मतलब टी सेल्स का बहुत सारे वेराइटीज आपको देखने को मिलेगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, memory T cells. So there are lots of types of T cells, but उनमें से जो साइटोटॉक्सिक T cells होता है ये भी सिक्रेट करता है एन एरे ऑफ साइटोकाइंस। एरे मीन्स बहुत टाइप्स के साइटोकाइंस जनरेट करते हैं, बट ये काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड लिमिट पे होता है जो एज कम्पेयर टू हेल्पर T cells. सो हेल्पर T cells का भी अंडर बहुत सारे टाइप्स है, मतलब हेल्पर T cells जिस तरीके से साइटोकाइंस जनरेट करते हैं उसके भी सब टाइप्स है, लाइक helper T cell cytokine type 1, type 2, type 9, 22, 17 एंड REG एंड FH. तो ये इंडिविजुअली हर एक सबसेट जो हमने बात की, ये हर एक अपने यूनिक एक साइटोकाइन का प्रोफाइल रखते हैं. So that's all about your how the cytokines play a very important role in your innate as well as adaptive immunity. And if you have any queries, please let me know in the comment section, as I always tell you. And I think that this lecture is equally important because I think we are almost completing the topic of cytokines, and we'll start with the next video where we'll be studying about adaptive immunity in an overall manner and what are these features. And also we'll discuss about few more things which are associated with the adaptive immunity, and we are almost on the end of this process. So thank you so much for watching this video. If you have any queries, please let me know and share this video with all your valuable friends. Thank you so much.